Good morning, everyone. This is maths class, and this is my arrangement in class 8A also. So that means it is a combined class of 8A and 8B. Yeah, good morning. So I have muted you all. First of all, what you all have to do in the chat box, write your full name, your class, and section for your attendance. Write your full name, class, and section for the attendance, and send it in the chat box. WhatsApp पे नहीं कह रहा हूँ मैं chat box में use the chat box. Okay. Full name, class and section. क्लास और सेक्शन भी लिखना जरूरी है. कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ दे आर राइटिंग ओनली देयर नेम. एक ही मैसेज में लिख के भेजो ना, नेम क्लास एंड सेक्शन. बेटा मैंने कहा नेम क्लास एंड सेक्शन आपको एक ही मैसेज में लिख के भेजना है. आप लोग अलग अलग मैसेज में लिख के भेजो. एक मैसेज टाइप करो, उसी में लिख के भेजो. जिन बच्चों ने नहीं भेजा है, most of the students have written name class and section in the same message. Some have not written. Okay. Write a name class and section. Yeah, Agran Ahmed, Delwal Akshay Chandra, Anshuma Singh, Dehre, Dhruv Kodani, Dhruv Kumar, Divyanshu, Harshita Singh, Manir, Mandina, Mane, Naitik, Saraswat, Pavneet, Pranjali, Arts, Rajneesh, Ranshul, Rudra, Rudransh, Vivek, Surya, Mishka, Uzair. This is cover now. So, if you have any doubts, I will be teaching you. And in 8th B, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, we are doing the chapter squares and square roots. 8th B में squares and square roots we are doing. We have completed the first exercise. We have started doing the second exercise, but I was explaining some properties yesterday. Properties of perfect square numbers में explain कर रहा था. So I will be continuing with the explanation of the properties of perfect square number. Chapter number 3 है ये. Okay. Properties of perfect squares. हाँ, इसमें एक बड़ी important सी property रह गई थी. Pythagorean triplets वाली property रह गई. ठीक है. And that I will explain today. So if you have any doubt in the class, I will not unmute you today. Sorry, मैं किसी को unmute नहीं करूँगा. If you have any doubt during the class, you can send your problem in the chat and I will reply you definitely. जैसे आप कोई doubt हो, you send a message in the chat box. I will be asking you in between. I will be interacting with you. मैं कुछ पूछता हूँ, you answer in the chat box. And आपको कोई doubt हो, you ask in the chat. I will answer. Okay.
Okay. So yeah, squares and square. So we are doing the properties of perfect square numbers. Only the last property is left to be explained. Okay. Property है, the name of the property is Pythagorean triplet. Pythagorean triplets. Okay. क्या होती है ये? प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी का ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी है जो हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं आई थिंक, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर मैं फिर से याद दिला देता हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। Suppose there is a number 6, there is a number 8 and there is a number 10. ये three numbers 6, 8 and 10। अब इन तीनों नंबर्स में कमाल का रिलेशन है, हर एक नंबर में नहीं होता, कभी कभी किसी किसी नंबर में होता है। ठीक है, क्या होता है? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अगर आप करोगे तो 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, ऐड करके आ गया 100, और 100 क्या होता है? 10 स्क्वायर। तो मुझे एक रिलेशन मिला 6, 8 और 10 में। क्या रिलेशन मिला? दैट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो ऐसे नंबर्स जिनमें ये चीज, ये जो मैंने अभी भी फॉर्मूला जो यहाँ पे बनाया, ये चीज जो है, ये इक्वेशन, ये अगर वेरीफाई हो जाती है, देन वी कॉल द थ्री नंबर्स एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड करने पर हमको सी स्क्वायर मिल जाता है, देन वी से दैट ए बी एंड सी आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है तो हम कहते हैं ए बी एंड सी आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, डोंट वरी। अभी तक जो बताया मैंने वो समझ में आ रहा है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस। जरूरी नहीं है कि 6, 8 और 10 ही, और भी एग्जांपल्स हैं इसके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल 5, 12 एंड 13। ये चेक करते हैं क्या 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, ऐड करा तो 169 आ गया। अरे 169 तो 13 स्क्वायर के इक्वल होता है, तो मुझे मिल गया 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। कैन वी से दैट 5, 12 and 13 are Pythagorean triplets? You can answer in the chat box. मैंने पूछा can we say that 5, 12 and 13 are Pythagorean triplets? कह सकते हैं या नहीं? Answer in the chat box. Very good. I can see many of you answering in the chat box. बाकी बच्चे भी आंसर करें yes or no. ध्रुव भोजवानी कह रहे हैं no, बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं yes. आंसर इज yes. Okay, बेटा ध्रुव क्यों नहीं है ये? is an example of Pythagorean triplets। ठीक है, हैं 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर के इक्वल आ तो है, नो प्रॉब्लम। यस दे आर पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स। एक और बच्चे ने कहा है आराध्य नागपाल, बेटा क्यों नो होगा? यस है आंसर। yes they are Pythagorean triplets because 5 square plus 12 square is equal to 13 square। वेरीफाई करा दिया, देखिए ये मैंने वेरीफाई कराया है, ये वेरिफिकेशन किया है इसका। ठीक है, तो यस जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल आएगा, we say that they are Pythagorean triplets। ठीक है,
Okay. चलिए, I am asking, I am going to ask you whether these numbers are Pythagorean triplets or not. You have to tell me. चेक करके वेरीफाई करके आप लोग मुझे बताएंगे. 3, 4 and 5. इतने सिंपल से मैंने तीन नंबर लिए, 3, 4, 5. चेक करिए क्या ये तीनों नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं या नहीं है, और मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताइए whether they are or they are not. यस, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं तो यस बोल दीजिए, अगर नहीं है तो नो बोल दीजिए. सिर्फ इतना कर दीजिए चैट बॉक्स. 3, 4 and 5 are Pythagorean triplets or not. आपको खुद वेरीफाई करके. मंदीना ने कहा है नो सर. मंदीना से मुझे बात करने का. मंदीना ने नो क्यों कह दिया? मंदीना बेटा अनम्यूट करके बताना जरा क्यों नो, व्हाई नो. सर मुझे लग रहा है क्योंकि एम, अगर जो हम नंबर एम लेंगे वो एम का स्क्वायर तो 3 हो ही नहीं सकता है ना. एम कहाँ से आ गया यहाँ? एम की बात ही कहाँ चल रही है? ये एम क्या चीज है? मैंने तो अभी तक एम कुछ बोला ही नहीं. हाँ जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अगर आ गया दैट मींस दे आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स. एम कहाँ से आ गया? समझ में आ रही मेरी बात? नहीं ना, फिर से एक बार बोलो जरा. सर आई वाज सेइंग दैट टू फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स we do m का स्क्वायर एंड m का आई स्क्वायर एम प्लस नॉट 1 एंड m आस्किंग. का. अरे वो कहाँ से, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही? मैंने तो कुछ बताया नहीं है अभी तक. मैंने तो ऐसा ऐसा अभी तक कुछ नहीं बताया. हो सकता है आगे जाके बताऊं मैं. एम स्क्वायर और 2m और ये सब एम स्क्वायर प्लस 1 ये सब चीजें, वो तो मैंने अभी कुछ बताया नहीं. आपको सिर्फ ये वेरीफाई करना है क्या ये दीज थ्री नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट. कैसे वेरीफाई करेंगे? आपको चेक करना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या 5 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस ये चेक करना है. तो चलिए वेरीफाई करते हैं. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, ऐड करके आ गया 25. क्या 25 5 का स्क्वायर होता है? यस होता है. वेरीफाई हो गया. आंसर क्या आएगा आपका? यस आएगा आंसर. Yes, they are Pythagorean triplets. 3 square plus 4 square is equal to 5 square. होता है. That means they are Pythagorean triplets. सारे बच्चों ने आंसर यस करा है. कुछ बच्चे हैं दो तीन आराधे नागपाल हर बार नो, इन ये हर बार कुछ अलग सोचते हैं. आराधे नागपाल एंड आदित्य सेना. आराधे बेटा क्यों इतना अलग क्यों सोच रहे हो? जरा माइक ऑन करके मुझे बताना. मैं ऐसा क्यों लग रहा है आपको? यस आराध्य. सर मैंने गलती से ना 3 का स्क्वायर 12 ले लिया था सर. अरे चलो समझ में आ गया. यस सर. तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिया. सॉल्व चेक. वेरीफाई वेरीफाई नहीं मतलब बताइए यस और नो कि आर दीज नंबर्स आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स. आई एम गिविंग यू द नंबर्स 10, 12 and 14 are the three numbers Pythagorean triplets. क्या ये तीनों नंबर Pythagorean triplets हैं? आपको आंसर यस और नो में देना है इन द चैट बॉक्स.
चलिए वेरी गुड, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है। एक दो बच्चों ने कुछ अलग आंसर दिया है, दो बच्चों ने आंसर यस बोला है, और all the others are giving the right answer. No, the answer is no. इस बार आंसर no है. These are not Pythagorean triplets. चलिए वेरीफाई करते हैं। देखिए 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 100, 12 स्क्वायर 144, ऐड करके आ गया 244। 244 14 स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 14 स्क्वायर क्या होता है? 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196। So are they equal? No. That means the answer is no. These are not Pythagorean triplets. They are not Pythagorean triplets. ठीक है, तो ये तो हो गया Pythagorean triplets क्या होते हैं। मैं अभी तक आपको एग्जांपल दे रहा था कि what are Pythagorean triplets. ओके, अब हम पढ़ते हैं कि Pythagorean triplets क्या हम लोग खुद भी बना सकते हैं। मंदीना, अब आपकी वो वाली बात आती है जो आप कह रहे थे m स्क्वायर और ये सब जो आप बात कर रहे थे। Mandina, are you getting my point? First of all, I was explaining कि Pythagorean triplets होती क्या चीज है। किसका तुमसे पाया? मंदीना का है। चलिए, सो अब हम वी कैन फॉर्म, क्या हम बना सकते हैं? ये ऐसे तुक्का मार करके तो पता लगाना बहुत मुश्किल है। व्हाट मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन कौन से हैं? घंटों बैठ के सोचते रहो, आओ भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएं, सोच रहे हैं, पता लगा आधे घंटे में सोच करके एक ट्रिपलेट पता लगाया आपने, तो ये तो बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा। एक आसान तरीका है, कोई भी नंबर आप सोच लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया 7, अब मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने m की वैल्यू 7 लगा दी। अब मैं एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता हूँ, देखिए कैसे। m इक्वल टू 7 ले लिया। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बनाने के लिए सिर्फ इतना करना है, 2m पता लगाइए। 2m की वैल्यू क्या आएगी? देखिए क्या आ रही है, 2 इंटू एम, यानी कि 2 को m से मल्टीप्लाई कर, कितना है? 14। उसके बाद एक काम और करिए, एम स्क्वायर माइनस 1 पता लगाइए कितना है। एम स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? बताओ भाई। 49, एम की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 यानी कि 48, और एम स्क्वायर प्लस 1 पता लगाओ कितना होगा। ये तीन चीजें पता लगा, 2m 14 आ गया, एम स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 49 माइनस 1, एंड अमीना बेटा ये कलाकारी मत करो प्लीज, अब तो मेरे नहीं कर पाओगे। एंड 49 प्लस 1 मैं ही करूंगा इरेज बेटा, टेंशन मत लो। 49 प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 49 प्लस 1 ये आ गया 50। so if I find out all these three things, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों चीजें अगर मैंने पता लगा ली, तो अब आप चेक कर लीजिए 14, 48 and 50, these three numbers are Pythagorean triplets। यहाँ पर m का रोल खत्म हो गया, m का रोल कुछ नहीं बचा। m क्या था? 7 था। 7 नहीं है लिखा है मैंने इसमें, मैंने क्या लिखा है? 2m की वैल्यू लिखी है 14, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू लिखी है 48, एंड m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू लिखी है विच इज 50। तो दीज थ्री नंबर्स आर पाइथागोरियन। देखिए कितनी आसानी से हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से एक ट्रिपलेट पता लगा दिया। ऐसे हम इनफाइनाइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता लगा सकते हैं। वुड यू बिलीव इट? इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आएगा वो बताएंगे। क्या करना है आपको? मैं m की वैल्यू बताऊंगा, सिर्फ m की वैल्यू बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो तीनों नंबर्स हैं वो क्या होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ये हटा दे। करना क्या है उसके लिए, आपके पास यहाँ पर एग्जांपल एक दिया हुआ है मैंने, मैं आपको एक नया केस देता हूँ। मान लीजिए इफ m इज इक्वल टू 5, m क्या लिया है मैंने? 5। अब बताइए व्हाट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्या आएगा?
So many of you have given the correct answer already. Some of you are still doing, I think. बहुत ज़्यादा आंसर्स आए नहीं, कुछ ही आंसर्स आए हैं. तो फर्स्ट नंबर इन ऑल द आउट ऑफ ऑल द थ्री, तीनों में से जो पहला वाला है 2 है. फर्स्ट नंबर आपका आएगा 2 into 5 यानी कि 10 आ जाएगा. सेकंड नंबर यानी कि m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 यानी कि 24. सेकंड नंबर आ गया 25. एंड थर्ड नंबर m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 25 प्लस 1 यानी कि 26. 10, 24, 26. These are Pythagorean. This is an example of Pythagorean. Okay. वेरीफाई करके दिखाऊंगा why it is a Pythagorean triplet. आपने बिल्कुल सही निकाला है, कई सारे बच्चों ने बिल्कुल सही निकाला. Okay. Let me verify. This is absolutely correct. This is a Pythagorean triplet. कौन से 10, 24 and 26. तो 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर करके देखते हैं कितना आता है. 100. 24 स्क्वायर होता है 576. 24 square is 576. 100 plus 576 is 676. And do you know 676 is square of 26. यानी कि 26 square के equal आ गया. Therefore 10 square plus 24 square is equal to 26 square. इसका मतलब yes, 10, 12 and 26 are 10, 24 and 26 are Pythagorean triplets. ऐसे पता लगाते हैं. अब यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया भी जा सकता है. कैसे घुमा सकते हैं, घुमाते कैसे हैं? अब घुमाते ऐसे हैं, समझते हैं कि बच्चे तो बेवकूफ हैं, मतलब बुक वाले, मैं नहीं समझता, बुक वाले सोचते हैं बच्चे बेवकूफ. एक सेकंड मोड़ को एक. ओके, तो मैं बता रहा हूँ. अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए बच्चों को कोशिश करते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा डरा दें या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दें. इसके लिए क्या करते हैं, अब कहते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है उसका फर्स्ट नंबर बता देते हैं, जो सबसे छोटा वाला. मान लो आपको दे दिया जाए कि सबसे छोटा नंबर ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इफ सपोज इट इज सपोज 8, सबसे छोटा वाला 8 है. चलो 8 छोटा, सबसे छोटा नंबर सपोज मैं थोड़ा सा चेंज कर देता. सपोज द स्मॉलेस्ट नंबर इज 16. Yeah, the smallest number out of the three numbers of a Pythagorean triplet is 16. सबसे छोटा वाला 16. अब आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बाकी के दो नंबर निकालो. इसके अंदर पहला वाला तो पता ही है आपको, बाकी के दोनों निकालो. अब पता है कहाँ पर इन्होंने कोशिश करी आपको कंफ्यूज करने की. इन्होंने आपको m की वैल्यू नहीं बताई है, m की वैल्यू नहीं गिवन है. आपको सबसे छोटा नंबर गिवन है, दैट मींस आपको 2m की वैल्यू गिवन है. ये क्या दिया हुआ है, ये आपको 2m दिया. व्हाट इज 2m? सबसे छोटा नंबर क्या होता है, जनरली 2m ही होता है. बस एक ही केस होता है जिसमें सबसे छोटा नंबर 2m नहीं होता, वो अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो सबसे छोटा नंबर 2m होता है. तो 2m की वैल्यू आपको 16 दे रखी है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सबसे पहला नंबर आप कैसे निकालते हैं, 2m करके निकालते हैं, सबसे छोटा वाला. तो आपको वो नंबर आपको दिया हुआ, दैट मींस 2m की वैल्यू आपको 16 गिवन है. अब यहाँ से आप पहले m निकाल लेंगे. m कितना आया, m 8 आ गया.
आपको डायरेक्टली m की वैल्यू गिवन नहीं थी, आपको 2m की वैल्यू गिवन, आपने m निकाल लिया। अब m निकल गया तो आप बाकी के दोनों नंबर्स निकाल सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। m स्क्वायर माइनस 1 बोले तो 8 स्क्वायर 64 माइनस 1 एंड 64 प्लस 1, यानी कि 63 एंड 65। तो आई कैन से दैट कौन से तीन नंबर आए, फर्स्ट वाला गिवन था 16, 8 नहीं है 16 है फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ था क्वेश्चन। तो 16, 63 and 65 are Pythagorean triplets. Have you all understood? Yes or no में मुझे बता दो बेटा कि समझ में आया या नहीं आया in the chat box. Very good. सारे बच्चे को समझ में आ गए, सारे yes बोल रहे। So let me ask you a question. मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है? You all will try to form a Pythagorean triplet. मतलब बनाना है, उसमें सबसे छोटा नंबर, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ। I'm giving you the smallest number out of the Pythagorean triplet. The smallest number of the Pythagorean triplet. तो मैं आपको okay. So the smallest number of the Pythagorean triplet is 18. Smallest number is 18. Pythagorean triplet का सबसे छोटा नंबर 18 है। आपको बाकी के दो नंबर्स पता करें। Okay, I can see some of you giving the answers, but एक बस एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं most of the students. मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सबसे छोटा नंबर दिया हुआ है, बाकी के दोनों पूछे हैं।
आपके आंसर में छोटी सी गलती है, सॉल्व तो सब सही कर रहे हैं, बट देखिए मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द मिस्टेक इन योर आंसर। करा सबने सही है, देखिए अभी पता चलेगी आपको व्हाट इज द मिस्टेक। Here, the smallest number of the Pythagorean triplet is 18. जब ऐसे बोला जाएगा smallest number of a Pythagorean triplet is 18, तो आप उस नंबर को 2m के इक्वल लगा दें, 2m equals to 18 लगा दें। Therefore m equal to कितना आ गया 9। अब m square, m की वैल्यू मिल गई, m square minus 1 करा आपने, 81 minus 1 is 80, m square plus 1 कर लिया, 81 plus 1 is 82। तो अब कुछ बच्चों ने आंसर दिया है 9, 80 and 82 is a Pythagorean triplet, which is wrong. This answer is wrong. सब कुछ सही करने के बाद भी आपने आंसर गलत दे दिया। आपको 9 को इंक्लूड नहीं करना है, 9 तो m की वैल्यू, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सबसे छोटा नंबर तो पहले से ही दिया हुआ था ना आपको, 18, 80 and 82। These three numbers are Pythagorean triplets। ये आंसर अगर किसी बच्चे ने दिया then it is absolutely correct, और किसी ने आंसर दिया 9, 80 and 82 then it is wrong। Have you understood? अब बता दो yes और no में अगर समझ में आ गया। बाकी बच्चे आंसर नहीं करेंगे। हाँ जी सक्सेना जी कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। सर नेक्स्ट पीरियड आपका है? हाँ जी बेटा मेरा ही है, 8th B में है मेरा, 8th A में नहीं है, 8th B में मेरा period है। ओके सर। ओके, तो एक और पूछता हूँ, यू ट्राई टू गिव द आंसर। Suppose the smallest number of a Pythagorean triplet is 6। इतना सिंपल सा दे दिया मैंने 6। Smallest number of a Pythagorean triplet is 6। बाकी के दोनों बताओ।